ابھی کچھ دن پہلے ہمارے جامعۃ الرشید میں ہمارے استاذ کے پاس ایک بڑا کروڑپتی آدمی آیا, مالدار آدمی, ٹھیک ٹھاک مالدار. مالداروں کے بڑے مسائل ہو گئے ہیں آج کل, پتہ ہے آپ کو؟ مالداروں کے گھروں میں ایسے ایسے مسائل چل رہے ہیں کہ آپ کی سوچ. کیوں؟ ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگ بھاگ کے نا, جیب میں بھی دولت ہے, دل میں بھی دولت ہے, اتنا دولت. یہ جو بھاولپور کا واقعہ ہوا, لڑکیوں نے اپنی عزت کے جنازے نکالے یہ نمبروں کے چکر میں. کیوں بھائی؟ نمبر میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ اپنی عزت بیچ دو پروفیسر کے سامنے؟ ہمارے لیے نمبروں کی ویلیو نہیں ہے, ان لڑکیوں کے لیے بڑی ویلیو ہے, کیونکہ اس سے ان کا فیوچر وابستہ ہے. ان کو پتا ہے جب تک اچھے نمبر نہیں آئیں گے اچھی جاب نہیں ملے گی, اچھی جاب نہیں ملے گی پیسہ نہیں آئے گا, پیسہ نہیں آئے گا تو غریب رہیں گے, غریب رہیں گے تو ناکام ہو گئے. تو جب ناکامی غربت میں سمجھ لی گئی ہے تو وہ عزت بیچنے کے لیے بھی تیار ہے, ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ. وہ دوسرے کی جنسی تسکین کے لیے بھی تیار ہے, بس پکڑے نہ جائے, پتہ نہ چلے, چھپ کے سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ ہماری یونیورسٹیوں نے ذہن بنایا ہے لوگوں کا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے, خدا کا خوف, اللہ, آخرت یہ یونیورسٹیوں کے ٹاپک ہی نہیں ہے. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے. مجھے بہت لوگوں نے کہا بھاولپور یونیورسٹی میں ایسا ہوا, بیان دیں. میں نے کہا کیا بیان دیں؟ ایک یونیورسٹی میں ہو رہا ہو تو ہم بیان دیں نا. تو پتہ نہیں کہا کیا کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں, تو بہت کچھ ہو رہا ہے. جب آپ نے دماغ یہ بنا دیا لڑکیوں کا کمپٹیشن, نمبر, ترقی 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 ترقی, بس تو اس کا رزلٹ تو یہی نکلے گا. یورپ میں تو اس سے بھی آگے ہوتا ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ ان کے لیے تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا. اگر ان کو اس پہ وہ تو کہتے ہیں تو یہ تو پتہ نہیں چھوٹی باتیں, یہ پاکستانی لوگ اس طرح کی باتیں کر کے ڈپریشن میں جاتے ہیں. ان کے لیے تو یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں. تو وہ تو اگر مرضی سے ہو رہا ہے وہ تو پھر سب کچھ جائز ہے ان کے یہاں. تو جب آپ نے ہر چیز, دولت کو, پیسے کو, عزت کو, شہرت کو, اور وہ نمبروں سے ہی ہو رہی ہے. ایک یونیورسٹی کے طالب علم یا طالبہ کے لیے سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ نمبروں کی ہے. تو نمبر اس کو مل رہے ہیں تو آخرت کا کہاں سے خوف ہوگا اس کے دل میں؟ وہ تو کہیں گے ہم ناکام ہیں اگر ہمیں نمبر نہیں ملے. تو میں بتا رہا تھا وہ کروڑپتی تاجر آئے ہمارے استاد سے ملے, انہوں نے بتایا کہ میں اس قدر ڈپریشن میں ہوں کہ بتا نہیں سکتا. انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی بیوی کو اچھا کھلایا, اولاد کو اچھا کھلایا, اب تنہائی میں سسکیاں لے رہا ہوں, کھانستا ہوں تو کوئی پانی کا پوچھنے والا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کھانستا ہوں نا, کوئی بیٹے کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ پوچھ لے ابا پانی تو نہیں چاہیے, حالانکہ اس کے احسانات اپنی بیوی بچوں پہ ایک غریب آدمی سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن بیوی کو پیسہ کھلا کھلا کے پیسے کا ہوس دل میں ڈال دی. اتنا پیسہ ملا بیوی کو کہ وہ سمجھنے لگی کہ دنیا میں سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ. خواہشات پوری ہو رہی ہیں نا. بچے بھی ایک آدھ, بچے زیادہ پیدا نہیں کیے تاکہ ان کو زیادہ پیسہ کھلاؤں میں, تو بچے بھی ایک آدھ ہیں. اب وہ ایک ہی, جب وہ بھی پیسے کا مریض ہے, اس کو پتا ہے میرے باپ نے نسل کیوں روکی ہے؟ پیسہ بچانے کے لیے. تو پیسہ بچانا اصل مقصد کائنات ہے, لہذا ہم بھی کیا کریں گے؟ پیسہ بچائیں گے. تو پیسہ تو بھائی اولاد پہ خرچ کرو تو بھی کم ہوتا ہے, باپ پہ خرچ کرو تو بھی کم ہوتا ہے. نہیں آئی کھوپڑی شریف میں بات؟ بھائی جب بچے روکے جائیں گے اس لیے کہ اولاد زیادہ ہوگی تو ان پہ خرچ ہوگا, جب خرچ ہوگا تو پیسے کم ہو جائیں گے. تو وہی فلسفہ تو ابا پہ بھی آتا ہے نا صادق, تو پھر ابا پہ بھی خرچ کرنے سے کم ہوتے ہیں تو بیٹے پہ خرچ کرنے سے بھی کم ہوتے ہیں, تو نسل روکو. تو جب یہ دماغ شریف میں بیٹھ گیا کہ پیسہ جتنا روکا جائے گا بڑھے گا, تو بھائی پھر تو غریب پہ خرچ کرو یا ابا پہ خرچ کرو, کم تو دونوں صورتوں میں ہو رہا ہے. کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کاش میں کسی طرح نہ اپنی باتیں کھوپڑیوں میں ڈال دوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں سمجھاؤں کیسے. ایک ہی ٹاپک کو میں 20 سال سے چیخ رہا ہوں لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے, یا میرے اندر طاقت نہیں ہے سمجھانے کی. خدا کی قسم مذہب کو فالو نہیں کیا نا, جو اسلام کہہ رہے ہیں نا آنکھ بند کر کے مانتے چلے جاؤ, اس سے تمہاری دنیا جنت بن جائے گی, آخرت تو بعد میں. ہم نے تو علماء کو دیکھا ہے, خدا کی قسم جیب میں تھیلا نہیں ہے, ایسے خوش ہیں اتنے. ہم پیغمبر سے بڑھ کر کون ہوگا؟ ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن کھانے کو روٹی نہیں, چولہا نہیں جلتا, 9 بیویاں, بیوہ سے شادی, اور اس کے یتیم بچے لے کے پال رہے ہیں. ایسا نبی نسل روکنے کا حکم دے گا تمہیں؟ ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو ایک نبی ہے جو غربت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے, وہ شادی بھی کتنی کر رہا ہے؟ 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم. ان کے خرچے 9 گنا بڑھ گئے نا ہم لوگوں سے, اور اپنی نسل بھی نہیں روک رہے. وہ تو اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی, اس میں بڑی حکمتیں تھیں تاکہ نبی کی اولاد میں بیٹا نہیں اللہ نے دیا نا, بیٹے ہوئے تو کیونکہ آپ آخری نبی ہیں. کیونکہ جو نسل چلتی ہے نا پیغمبروں کی وہ تو ساری اولادوں میں چلتی ہے نا, تو اللہ نے آپ کو نرینہ اولاد کو زندہ ہی نہیں رکھا تاکہ نبوت کا بالکل دروازہ بند ہو جائے. کوئی آپ کی نرینہ اولاد ہو ہی نہیں کہ تاکہ کوئی بات میں کہہ سکے کہ نبی آ سکتا ہے نہیں, اس میں بڑی حکمتیں تھیں. لیکن ہمارے نبی غربت کی انتہا پہ شادیاں بھی کتنی کر رہے ہیں؟ 9 بیویاں, اور ایک ام سلمہ جو بیوہ تھی ان سے بھی نکاح کیا. انہوں نے کہا میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا بچے بھی لے آؤ. ہمارے ہاں جو لبرل طبقہ ہے وہ کہہ رہے اپنے بچے پیدا نہ کرو, اس سے تمہاری آمدن کیا ہو جائے گی؟ کم. اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟
इतनी कम जितनी मेरी है, यानी नबी बज़बान हाल बता रहे हैं, इतनी तो किसी की भी कम नहीं हो सकती। और ऐसे में मैं पैदा करना तो दूर की बात, दूसरों के बच्चे भी क्या कर रहा हूं, अपनी कस्टडी में ला रहा हूं। तो इस्लाम और ये लिबरल लोगों के नजरियात 180 डिग्री पे है कि नहीं है, मुझे ये बताओ खाली। तो इस्लाम क्या समझाना चाह रहा है पैगंबर की सीरत से? भाई पैसा कमाओ, फिक्र करो, लेकिन इंसानों पे खर्च करना मत छोड़ो। ना इंसान की नस्ल को रोको ये सोच के कि खा जाएगा हमसे, ना माँ बाप पे खर्च करना रोको ये सोच के कि कम हो जाएंगे। बल्कि नबी ने फरमाया सदका करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। ऊपर वाला हाथ अल्लाह को नीचे वाले हाथ से ज्यादा महबूब है। इसलिए मुसलमान, हमने उलमा को देखे एक ढेला भी जेब में नहीं है, टेंशन में फिर भी नहीं है, खर्च फिर भी कर रहे हैं। हमारे नबी तो गरीब आता था उधार लेके दे देते उसको। कितने सहाबा ऐसे हैं कि शहादत के वक्त पता चला करोड़ों रुपए कर्जा था इनके ऊपर, वो कर्जा फिर उनकी विरासतों से निकला। बरकत, इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है कि मुजाहिद के माल में बरकत, मुजाहिद के माल में बरकत। वो सहाबी रसूल सारी जिंदगी जिहाद में गुजरी, तो जिहादी सामान के लिए जरूरत होती थी, वो कर्जा लेते थे। अल्लाह ने उनके माल में इतनी बरकत दी कि उनकी करोड़ों रुपए की कर्जे उनके इंतकाल के बाद अदा हो गए। दो, खर्च करना सीखो मेरे भाई, खर्च करना सीखो। तुम्हारा जब तुम खर्च करोगे ना अपने बच्चों पे, औलाद ज्यादा होगी, बीवी पे भी बच्चों पे भी, उनको भी खर्च करना सिखाओ। उनको बोलो बेटा पैसा वैसा कुछ नहीं होता, पैसा जमा करने की चीज नहीं है, पैसा क्या करना है, खर्च करना सिखाओ। जब तक आपके पास 2 हाथ और 2 पांव सलामत हैं, सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास। अब सोर्स ऑफ इनकम, रिस्क के जो दरवाजे हैं ना, वो हमें नहीं पता होता किसके लिए कहां से खुले हैं। आप जितनी भी मेहनत करो, रिस्क के दरवाजे किसके हाथ में है? अगर मेहनत पे मिलता तो मजदूरों को ज्यादा मिलता, और जो घरों में पड़े रहते हैं उनको कम मिलता। हम तो देख रहे हैं किसी के लिए रिस्क छप्पड़ फाड़ के आ रहा है, वो मेहनत भी नहीं करता, और कोई सारा दिन प्लानिंग करता रहता है, फिर भी वहीं बैठा रहता है। तो आप अल्लाह की बात क्यों नहीं मान लेते? भाई जितना है हमने क्या करना है, अल्लाह के लिए खर्च करना है। तो अल्लाह की बात मान लो और अल्लाह पे क्या करो, तवक्कुल। फिर अगर गुर्बत भी आएगी तो आप कहोगे मुझे किसने गरीब रखा हुआ है, अल्लाह ने, तो मैं इस तकदीर पे राजी, क्योंकि मैं दुनिया को मुसाफिर खाना समझता हूं। लेकिन होता यह है कि जब आप खर्च करना शुरू करते हो तो अल्लाह गरीब रखता नहीं है, देता रहता है। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं कि बिलफर्ज गरीब ही हो जाओगे ना, नहीं आएगा ना, तो किसके लिए कर रहे हो भाई? वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जिसके लिए आसमानों और जमीन के खजाने हैं, वो फिर भी तुम्हें गरीब रख रहा है जबकि वो दे सकता है। तो इसका मतलब वो तुम्हें आजमाना चाहता है, इसी में तुम्हारी खैर है। तो कोई बात नहीं यार। देखो एक गरीब बच्चा हो, उसका बाप बड़ा करोड़पति हो, तो बच्चा गरीब होने के बाद भी टेंशन नहीं लेता, कह रहा मेरा बाप के पास बहुत पैसा है, वो मुझे जाया नहीं होने देगा। अब अगर मेरा बाप मुझे पैसे नहीं दे रहा, इसमें मेरी इसलाह, बच्चे बात पता होता है अप्पा को, मैं इसको पैसे दूंगा, छुट्टे लगाना ना शुरू कर दे, कहीं गुटखा ना खाना शुरू कर दे, तो टेंशन नहीं लेता। कहते भाई मेरे पास वसाइल भी हैं, जराए भी हैं, मेरी जेब में नहीं, अप्पा के अकाउंट में है। तो अप्पा को पता है क्या मेरे ऊपर गुजर रही है, तो कोई ट्रेनिंग करना चाह रहे होंगे, अप्पा मेरी तरबियत देना चाह रहे होंगे। तो जिसको अल्लाह पे तवक्कुल होता है तो अल्लाह उसे जिस हाल में रखता है वो उस हाल में क्या रहता है, खुश रहता है, इंजॉय करता है लाइफ को। तो वो बेचारा, वो करोड़पति आदमी आया, किस इलाके का था, मैं वो इलाके का नाम नहीं लूंगा, वो इलाके वाले गुस्से होंगे, हम लोग को बदनाम करते रहते हैं मुफ्ती साहब। तो कह रहे भाई मैंने बीवी को भी ठीक ठाक खिलाया, बच्चों को भी, बच्चे कितने 2-3, उनको भी बहुत खिलाया, अब खिलाने के काबिल नहीं हूं, रिटायर हो गया हूं, तो घर में पड़ा हुआ खांसता रहता हूं, बच्चों को बुरा लगता हूं, क्योंकि बच्चों को नोटों की क्या पड़ गई है, आदत। बच्चों ने बड़ी अय्याशी की है, बड़ी गाड़ियों में, 2-3 बच्चे गाड़ियों में घूमते रहे हैं, अब वो टेंशन ले नहीं सकते। बेगम की भी हर ख्वाहिश पूरी हो गई, अब वो टेंशन लेस हो गई, यानी टेंशन बर्दाश्त करने की ताकत उसमें खत्म। अब जब टेंशन बर्दाश्त करने की ताकत खत्म है, तो बूढ़े शोहर को बर्दाश्त करना, उसकी खांसी को बर्दाश्त करना, उसकी खिदमत करना, ये सब चीजें इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती हैं। देखो दौलतमंद लोग या जो बेदीन लोग हैं, उनकी जवानी को देखकर कभी भी धोखे में ना आया करो। ये थोड़े दिन का इनके मजे होते हैं, इसके बाद जब इनकी उम्र बढ़ने लगती है, इनमें आपस में रिलेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, इनमें रिलेशन बिल्कुल नहीं होता, हवस होती है, बस हवस। तो और हमने गरीबों में देखे हैं, 10-10 साल हो गए बाप को कौमे में गया हुआ है, बेटा बाप की चारपाई नहीं छोड़ता कि अप्पा को किस वक्त किस चीज की जरूरत पड़ जाएगी, कहीं जाता है तो दूसरे बंदे को खड़ा करके जाता है। ये जो यूरोप में माजूरों की इतनी खिदमत होती है ना, गवर्नमेंट पैसे दे रही होती है, हर माजूर को 2 बंदे दिए हुए होते हैं, हम बड़ी तारीफ करते हैं, कितनी अच्छी सोसाइटी है यार, वहां हर माजूर को 12-12 घंटे की ड्यूटी से गवर्नमेंट बंदा देती है। गवर्नमेंट अगर वहां लोगों को बंदे ना दे तो माजूर रोड पे पड़े हुए हैं वहां पे, सगा भाई भी अपने लंगड़े भाई को घर में रखने के लिए तैयार ना हो, गोरे के पास टाइम नहीं है अपने बाप को अपने घर में रखे, वो अपने भाई को कहां से रखेगा? भाई मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात, लोग बड़ी तारीफ करते हैं ना, एक्चुअली वो मुल्कों में कितनी ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है, मुझे सामने किसी को बहुत फेंक रहे होते हैं, मैं कभी भी मुतासिर नहीं होता, अल्लाह का बड़ा फजल है। मैं कहता हूं हम लोग लंगड़े लूले उनसे ज्यादा अच्छे हैं,
यहाँ माजूर भाई होता है, दूसरा भाई उसके लिए भीख मांग रहा होता है बेचारा, सारी जिंदगी उसके लिए रो रहा होता है। इंसानियत यहां मिलेगी आपको, वहां नहीं है। वहां इंसानियत के पाते हैं, तावे हैं, थोड़ी बहुत मिल जाएगी थैंक यू वैंक यू, बस इससे ज्यादा नहीं है। ये बच्चा आया कहां से आया? मुझे तो लग रहा है मरीख से आए, देखो बाहर से आए। तो इंसानियत जितनी यहां है वहां नहीं है। तो वो जो माजूर है ना, एक अपाहज हो गया, माजूर हो गया, गोरे के पास टाइम थोड़ी है अपने भाई की 12 घंटे खिदमत करे। वो कह गए एक्चुअली तरक्की करनी है, मैंने पैसा कमाना है, मैं क्यों आधा 12 घंटे इसकी खिदमत करके जन्नत कमाऊं? जन्नत को मानता ही नहीं है। और मैंने यहाँ लोग देखे हैं 10 साल से बाप कौमे में पड़ा हुआ है, बेटा खिदमत में लगा रहता है, कहीं बाहर जाता है दूसरा भाई, वो जाता है तीसरा भाई, छोड़ते नहीं अपने बाप को। काफिरों का तो कोई भरोसा नहीं है, चुपके से मौत का टीका लगाते हैं कि यार ये टेंशन। मैंने ऐसे बड़े वाकयात सुने हैं। एक जगह मेरा जाना हुआ, मैं इलाकों के नाम नहीं बताता, फिर वो लोग गुस्सा करते हैं कि वहां लोगों ने बताया कि हमारे इलाकों में ऐसा होता है गैर मुस्लिमों के यहाँ कि बाप बूढ़ा है, वो उम्र ज्यादा हो गई, खांसता रहता है, तो चुपके से डॉक्टर को पैसे खिलाए, भाई इसको टीका शीका लगा के मारो इसको, क्योंकि किसी काम का नहीं है। बहुत होते हैं ऐसे केसेस। अम्मा बूढ़ी हो गई, किसी काम की नहीं है, भाई टीका शीका लगा के इसको चलता करो आगे, बिस्तर पे पड़ी थी और कोई काम तो है नहीं। क्योंकि जब उनके यहाँ तरक्की सब कुछ है तो फिर ये तो सब बोझ लगेंगे ना सोसाइटी को। ये तो गवर्नमेंट ने कुछ कमानी साजी की हुई है, वरना बुड्ढों का कोई हाल नहीं था वहां पे। देखो जरूरत एजाद की माँ है, ये सुना है ना। वहां ये जरूरत थी कि बूढ़ों के लिए ओल्ड हाउस बने, माजूरों के लिए कानून साजी हो। जरूरत क्यों थी? वो अपने सगे भाइयों बहनों को घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। इतना तो कर लेंगे, बूढ़े को रोड पार करा दिया। ये हमें नजर आता है इन मुल्कों में कि नाबीना है तो किसी ने रोड पार करा दिया, बस इस 2-4 हद तक। इससे आगे इतनी टेंशन नहीं लेगा कि घर में माँ नाबीना है तो उसकी बैठ के खिदमत कर रही है औलाद, बाप नाबीना है तो उसकी बैठ के। हमारे यहाँ तो 5 टाइम वुजू करा रहे हैं, मरीजों को गुसल करा रहे हैं, उनके पैम्पर चेंज कर रहे हैं, उनको नमाजें पढ़वा रहे हैं, मसले पूछ रहे होते हैं हमसे, फिर भी रो रहे होते हैं कि खिदमत नहीं हो सकी हमसे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने इंसान की मौत का नक्शा खींचा। मैं कह रहा था अल्लाह में धमकियां बहुत देते हैं मगर अमल नहीं कर रहे धमकियों पे। तो कैसी कैसी धमकियां देते हैं, ये मैं एक आयत सुना, मेरे जहन में आई थी इस वक्त, वो मैं सुना रहा था। तो अल्लाह ने बताया कि जिस शख्स की मौत का टाइम होता है उस वक्त उसको समझ में आ जाता है कि दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना। वाकई ये तो मैं थोड़े दिनों के लिए आया था, अब मैं पतली गली से यहां से निकल रहा हूं। तो वो मौत से बचने की पूरी कोशिश करता है। अल्लाह कहते हैं तमाम तदबीरें क्या हो गई, नाकाम। अब अल्लाह कहते हैं अब मैं तुझसे पूछूंगा तूने किया है। देखो कुरान हमेशा नमाज को पहले जिक्र करता है और सदके को बाद में, लेकिन यहां सदका पहले है और नमाज बाद में। क्यों? दुनिया के मुसाफिर खाना होने का जो तस्वुर है ना, जो शख्स दुनिया को मुसाफिर खाना समझता है तो ये हकीकत में समझता है या नहीं है, ये नमाज से नहीं पता चलेगा, ये सदका खैरात से पता चलेगा। नहीं आई बात? भाई नमाजी भी पैसा जमा करते रहते हैं ना, भाई 5 टाइम मस्जिद में आके नमाज पढ़ लो, बाकी बहरिया टाउन, फलाना टाउन, डिमकाना टाउन और इतने मोटे मोटे सरिये इमारतों में डाल डाल के आदमी मौत को भूल जाता है, नमाज पढ़ता रहता है वो। आप दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हो या नहीं समझते, ये नमाज से पता नहीं चलता। क्योंकि बहुत से नमाजी हैं जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे होते हैं। वो कहते हैं पैसा नहीं जाना चाहिए हमारी जेब से, क्योंकि उनके जहन में तस्वुर ये है कि हमने हमेशा इस दुनिया में रहना है। तभी तो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। पिछली उम्मतों में जो पैगंबर थे उन्होंने अपनी कौम से क्या कहा, वतत्तखिज़ूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून। अपनी कौम से कहा तुम लोग घर ऐसे बनाते हो जैसे तुमने इसमें हमेशा रहना है। पैगंबर ने ये नहीं कहा तुम हराम पैसों से घर बना रहे हो, पैगंबर ने ये नहीं कहा तुम चोरी के पैसों से घर बना रहे हो, रिश्वत के पैसों से बना रहे हो, ना ना ना, हलाल पैसों से बना रहे थे। लेकिन पैगंबर को एतराज ये था कि इतने मजबूत बना रहे हो जैसे तुमने यहां से कभी मरना है ही नहीं। मैं समझा पा रहा हूं? यानी पैगंबर को इस पे इश्काल हो रहा है, हालांकि उन लोगों की उम्रें हमसे बहुत लंबी थी, उन लोगों की एज हम लोगों से बहुत ज्यादा लंबी थी, फिर भी पैगंबर उनसे कह रहे हैं तुम इतने मजबूत घर बनाते हो कि जैसे तुमने यहां हमेशा रहना है। मैं कहता हूं वो पैगंबर हम लोगों के बंगलों को देख लें जो हम 60 साल की उम्र में बना रहे होते हैं, 60 साल 65 साल की उम्र, अब्बा जरा स्टेबल हो गए ना, अब कहते हैं अब मैं अपना जाती घर बनाऊंगा। तो वो पैगंबर अगर हम लोगों को आके देख लें, अबे तू कितना कंक्रीट डाल रहा है इसमें, इतना मोटा सरिया डाल रहा है और तेरी उम्र रह गई है 5, 6, 10 साल बमुश्किल, करोड़ों रुपए तो इसमें फूंक दिए तूने, तो उनको हम पे कितना इतराज होता होगा। ये बातें मेरी भी समझ में नहीं शायद आ रही, आपकी भी नहीं आ रही, लेकिन जब आंख बंद होने लगेगी तो ठा करके समझ में आ जाएंगे। कहेंगे यार जबरदस्त बातें करके गए थे मुफ्ती तारिक मसूद साहब, बिल्कुल एकदम जबरदस्त। मैं जा रहा हूँ यार, किधर 2-3 करोड़ तो इधर फूंक दिया मैंने, इतना बड़ा बंगला बना लिया यार। 2 फुट की खबर है मेरी, 6 फुट की, 7 फुट की खबर है जिसमें मैंने भी जाने में कर किया है।
तो फिर भी मैं बार बार कहता हूं मैं घर बनाने के खिलाफ नहीं हूं, अल्लाह ने बहुत दिया तो बना लो बच्चों के लिए। ऐसा ना हो खबर पे खड़े होकर लात मार रहे हैं, बस स्पीड से पैदा तो मुफ्ती साहब का बयान सुन के इतने कर दिए हमें रोड पे छोड़ के चले गए हो आप। लेकिन कोई तो हद होनी चाहिए ना, कहीं तो ब्रेक लगे। यहां तो ब्रेक ही नहीं लग रही है, ब्रेक ही नहीं लग रही है। दीवारों से दिल लगाया हुआ है, ईंटों से दिल लगा। बच्चों को भी याद रखो, तुमने उनके लिए प्रॉपर्टी बना दी, मगर प्रॉपर्टी की मोहब्बत उनके दिल से अगर खत्म नहीं की, खुदा की कसम उस प्रॉपर्टी का उनको 2 टके का फायदा नहीं होगा। क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी उनको मिलेगी उनको ये महसूस होगा हमारी जरूरत इससे 10 गुना ज्यादा। अब्बा सिर्फ 10 करोड़ रुपए छोड़कर गए, हालांकि जरूरत तो हमें 1 अरब रुपए की है, कम छोड़ गए। वो टेंशन में ही रहेंगे सारी जिंदगी। देखो मेरे अब्बा मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़कर गए थे, खुदा की कसम हमें ये एहसास हो रहा था हमें जरूरत तो 5 रुपए की भी नहीं है, अब्बा पता नहीं क्यों इतने छोड़ के चले गए हमारे लिए। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है क्योंकि हमारे अब्बा ने प्रॉपर्टी को इतना फोकस नहीं किया था जितना हमारी दीनी तरबियत को फोकस किया था उन्होंने। नतीजा ये निकला कि अब्बा हमारे लिए जब कुछ छोड़कर गए तो हमें ये रहता यार इतना हमें जरूरत तो क्यों जरूरत नहीं थी। मैं कह रहा था यार हमें तो मदरसे से 4000 रुपए तनख्वाह मिलती है, तो हमें तो उसमें नाश्ता भी हो जाता है। 2000 की सन 2001 की बात कर रहा हूं, उसमें मेरा खाना भी हो जाता है, रात का खाना भी हो जाता है, और सर छुपाने की जगह मुझे वैसे ही मिली हुई। अब्बा ने घर जो है तो उसमें हम रहते तो है ना, नहीं अब्बा निकाल देंगे तो मदरसे वाले उस्ताद रख लिया था, वो कहीं ठिकाना दे देंगे, तो जरूरत तो इसकी भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा था अब्बा पता नहीं इतने लाख का प्लॉट क्यों छोड़ के चले गए हमारे लिए। तो हमें वो इजाफी क्या लग रहा था, अब्बा का एहसान लग रहा था, यार इतना एहसान कर दिया। हालांकि हम इतने सारे बहन भाई माशाल्लाह, तो उसमें बरकत भी हो गई। लेकिन अगर आपने आज माँ बाप फोकस कर रहे हैं पैसे को कि बच्चे को कमाओ पूत बनाओ, पैसा नोट छापे, उसको बार बार पैसों की वैल्यू उसके दिल में, और खुद भी अपने अमल से ये साबित करते हैं कि बेटा सब कुछ पैसा ही होता है। नतीजा ये निकलता है कि आप 1 करोड़ 10 करोड़ भी छोड़ के जाओगे ना, बच्चा नाशुक्रा होगा कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ कान लिब्नि आदम वादियम मिन ज़हब अहब्ब अन यकून लहू वादियान वलन यमला अफाहु इल्ला तुराब। मुत्तफक़ुन अलैहि, हदीस है बुखारी मुस्लिम की। नबी ने फरमाया अगर इंसान को सोने की एक वादी दे दी जाए, आप ये समझते हो ना कि यार देखें हम में से हर शख्स ये समझता है अगर मैं एक्चुअली इतने पैसे आ गए ना तो मैं सुकून से बैठ जाऊंगा, फिर मेरी नीड बस ये दुआ करें मेरे पास इतने आ जाएं। ओ भाई अभी इतने हैं नहीं, इसलिए तुझे लग रहा है इतने आएंगे तो तुझे सुकून आ जाएगा। इतने में थोड़े दिन के लिए आएगा, उसके बाद तू कहेगा कि काश ये तो बहुत थोड़े हैं यार, इस महंगाई के दौर में 25-30 करोड़ में कहां गुजारा होता। खुद सोचो यार, ये मैं सुनता हूं लोगों की बातें ना, ये लोग मेरे साथ तो साहब इस महंगाई के दौर में 30 करोड़ में कहां गुजारा होता है। आप कह रहे होगे कि यार ये 30 करोड़ में, तो भाई आप गरीब हो इसलिए आपको लग रहा है, गरीबों मालदारों के ये मसाइल हैं, वो टेंशन में ज्यादा हैं, वो ज्यादा टेंशन में है। मैं हर तबके से मिलता हूं और हर तबके के साथ रहा हूं, मैं सिर्फ 2-2 मिनट की मुलाकातें नहीं होती, मैं पता नहीं कहां का जाता हूं, मैं आपको क्या बता। हर जगह मेरे सलाम दुआएं ताल्लुकात हैं, गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी भी। मुझे जितना सोसाइटियों को कंपेयर करने का मौका अल्लाह ने दुनिया में दिया है शायद आपको नहीं दिया हो, और मैं बचपन से मुझे ऑब्जर्व करने की मेरे अंदर हिस्स है, जज करने की बचपन से हिस्सा है। मैं हमेशा बचपन से ही देखता रहता हूं सोसाइटी को, ये हो क्या रहा है, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं कि बीमारी कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकती है मुझे बचपन से। ये जब भी आता हूं मैं देखता हूं ये क्या है, मैं घरों में गया उनके बुढ़ा बाप पड़ा हुआ है, कमा कमा के खिला दिया, अब जब बुढ़ा हो गया तो ना बच्चे उसको पूछ रहे हैं। ऐसे मैंने खुद अपनी जिंदगी में अब्बा देखे हैं, ना बेगम पूछ रही है ना बच्चे पूछ रहे हैं, रो रहा है मेरे सामने आंसुओं से, कह रहा है ये घर मैंने इनको बना के दिया, बाहर मुल्क जाके पैसा भेजता रहा, ये खाते रहे, बुढ़ा होके जब रिटायर होके आ जाऊं अब मैं किसी काम का नहीं हूं, अब मैं कोई ऑर्डर देता हूं ना, थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर लूं तो इनके माथे पे लकीरें आ जाती हैं, इनके माथे पे लकीरें आ जाती हैं कि हमसे बात क्यों तमीज से नहीं कर रहे आप वालिद साहब। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये तो अल्लाह ने हमें मदरसों में भेज दिया, तो भाई हम थोड़े बहुत टूटे फूटे कुछ इंसान के बच्चे बने नहीं बने, लेकिन इतना पता चल गया कि इंसान के बच्चे की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। हमारे यहाँ तो पब्लिक को यही नहीं पता इंसान का बच्चा कहते किसको है। तो अल्लाह मियां ने क्या कहा, अल्लाह कहते हैं अब तू मर रहा है, सूरह क़यामा में ना अल्लाह कहते हैं अब तू क्या हो रहा है, मर रहा है, अब तुझे पता चल गया कि मुसाफिर खाना था या नहीं था। अल्लाह कहते हैं लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा, फला सद्दका, तूने सदका नहीं किया। आप कहें हमने तो किया है, आपने, हम और आपके सदके ऐसे होते हैं, वाइपर वाला आया था 5 रुपए, वो नहीं गाड़ी के शीशे पे मार रहा होता, 5 रुपए उसको दिए थे। वो हमारे एक दोस्त थे, बड़े मदरसे में मजाइया ना, तो वो क्या हुआ कि एक बड़ी शख्सियत का इंतकाल हो गया। अब लोग उनके बारे में तबसरा कर रहे कि कोई कह रहा है नेक आदमी थे, कोई कह रहा है नहीं बुरे आदमी थे, कोई ऐसे कोई सेलिब्रिटी थी जो जिसका इंतकाल हो गया ना। तो हमारे मदरसे में कहा नहीं बहुत नेक थे, एक तालिब इल्म का बहुत नेक थे, एक दिन मैंने उनको टोपी पहने हुए देखा था, वो बहुत नेक थे, एक दिन मैंने उनको टोपी पहने हुए देखा था। तो हमारी नेकी भाई यही है कि एक दिन हम टोपी पहन लेते हैं, एक दिन हमने
5 रुपए किसी को दे दिए, 10 रुपए उसको दे दिए, ठीक है, ना होने से भी बेहतर है। इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, हदीस में आता है आधी खजूर सदका कर सकते हो वो भी करो। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि आप दुनिया को क्या समझते हो, मुसाफिर खाना। मुसाफिर खाना होने का जब पता चलता है, जब रोकड़ा जब आपकी जेब से निकले तो थोड़ा सा दिल पे आपके आरे चले कि ये क्या हो गया यार, ये तो सच्ची मुच्ची का अल्लाह पे ईमान ले आया मैं, है जिसका सच्ची मुच्ची का ईमान होता है वही बड़ा कोई ऐसा खर्च करता है जो जिसको खर्च करना कहते, जो सहाबा करते थे। कुरान की आयत नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, महबूब चीज जब तक सदका नहीं करोगे नेकी की हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। साहबी आए, या रसूलल्लाह मेरी महबूब चीज तो मेरा बाग है जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, तो अल्लाह कह रहे हैं महबूब चीज सदका करो, ये सारा मैंने सदका कर दिया। यार कितना जिगरा चाहिए। मैं नहीं कह रहा आप लोग ये काम करें क्योंकि कल घर में फाका पड़ा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन सहाबा, इसका मतलब भाई वो एक यतीम पे ईमान लेकर आ रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आपने ना, उन लोगों ने ना जन्नत देखी ना जहन्नम देखी। देखो मजहब को सब लोग फॉलो करते हैं, हर शख्स अपने मसलक को, अपने मजहब को किसी न किसी, हिंदू भी फॉलो करता है, वो भी होली तो मना ही लेता है ना, लेकिन ये वो फॉलो नहीं है जिसमें यूं कहें कि इसको मजहब के सच्चे होने का यकीन है। ईसाई भी इतवार को चर्च चले जाते हैं कि नहीं जाते, सिख अपनी रसूमात पूरी करने चले जाते हैं, लेकिन बड़ी कुर्बानी मजहब के लिए कोई नहीं देता जब तक उस मजहब के 100% सच्चा होने का यकीन ना हो। वो सिर्फ मुसलमान देता है कुर्बानी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? वो सहाबा ने दी है, आज भी लोग देते हैं। मैदान जिहाद में शहीद होते हैं कि नहीं होते? देखो काफिर भी लड़ता है, लेकिन काफिर कुव्वत की बेस पे लड़ता है। कुफरिया ममालिक भी हमला करते हैं ना दूसरे मुल्कों पे, उनको बड़ी पावर होती है, बड़ी ताकत होती है, उसके बाद लड़ते हैं वो। अगर उनको यकीन हो जाए ना कि हमारी किसी फौजी को 100% यकीन हो जाए ना कि इस जंग में मैं लाजमी मरूंगा, कभी भी नहीं लड़ेगा, वो भाग जाएगा। मैं पागल हूं, मैं लड़के मैंने मुझे मिलेगा क्या, आप अलाउंस मिलेगा, तो कह रहे मुझे थोड़ी मिलेगा अलाउंस। वो तो यकीन नहीं होता, लड़ रहे होते हैं तो मारे भी जाते हैं वो। तभी हमें जो लोग की जंगों में शरीक रहे हैं ना मुख्तलिफ मुल्कों की, उन्होंने बताया कि जब गैर मुस्लिम मुल्कों से लड़ाई होती है ना, तो गैर मुस्लिम जब मरता है ना फौजी मैदान जंग में, अजीब बदतरीन आवाजों से चीखें निकाल रहा होता है वो, जैसे कोई नहुसत आ गई इसके ऊपर। लेकिन वो कहते हैं हमने शुहदा भी देखे हैं, जब वो मरते हैं तो ऐसे मुबारक तरीके से और ऐसे जैसे इनकी तमन्ना थी। है बहुत फर्क है दोनों मौतों में, बहुत फर्क है। तो अबू तलहा अंसारी नबी के पास आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहे महबूब चीज, तो मेरी महबूब चीज क्या है? मेरा बाग है। ये वो लोग हैं जो पैगंबर के लिए मैदान जंग में लड़ भी रहे हैं, भूख प्यास भी बर्दाश्त कर रहे हैं, और ला के पूरे बाग भी पैगंबर के कदमों में निशावर कर रहे हैं। लेकिन आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला देखें, हमारे नबी कह सकते थे लाओ ये बाग मुझे दे दो, साहबा फौरन देते कि नहीं देते? क्या ख्याल है? ये होती है लीडर की सिफात। साहबा को यकीन आ गया था कि लीडर में लालच नहीं है। लीडर जो कह रहा है ना कि दुनिया मुसाफिर खाना है, तो ये लीडर हमसे ज्यादा इस दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हैं। समझते हो कि नहीं समझते? आज मोटिवेशनल स्पीकरों की तकरीरें देखो, तकरीरें आप देखोगे ना, ऐसा लगेगा वही किसी ने बड़ा जबरदस्त पोस्ट चलाई ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर की कि पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता। नीचे लिखा हुआ था ये बात बताने की 1 लाख रुपए लेता है पैसा ही दुनिया में। मैं सारे मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से खाली खुली, अंग्रेज के पास भी खाली खुली दावे हैं। कितने अंग्रेज ऐसे हैं जो लोगों को डिप्रेशन से निकालने की तरगीबात देते थे, खुद डिप्रेशन में ही मरे हैं जाके वो। मुझे तो खुद नफ्सियाती डॉक्टर, 2 डॉक्टरों के केस तो मेरे पास आ चुके हैं, नफ्सियाती डॉक्टरों के, जो लोगों को डिप्रेशन से निकालते थे और डिप्रेशन में उनकी मौत हुई है। एक की तो मौत नहीं हुई, बचे में अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। लोगों को ना तरगीब के एक्चुअली काउंसलिंग यूं वो, और खुद थोड़ी सी टेंशन आई तो ऐसे डिप्रेशन में खुद भी बेचारे का वो दिमागी वो हो गया। तो भाई आप ये खाली खुली चीजें हैं, जब तक अल्लाह पे ईमान नहीं होगा, तवक्कुल नहीं होगा कि जो कुछ है कौन है? अल्लाह है। जाना किसके पास है? अल्लाह के पास जाना है। हमें कोई मुसीबत पहुंची है वो भी अल्लाह ने पहुंचाई, सब्र करेंगे अजर देगा, असल मंजिल आखिरत है। ये तसव्वुर जब तक नहीं आएगा, डिप्रेशन का इलाज गया खुद ही भेज दिया करो, हो ही नहीं सकता इलाज। खुदकुशियां भी होंगी। अभी वो एक पंजाब की कोई वीडियो थी, पता नहीं कहां की, कि खातून ने गुर्बत से तंग आके अपने बच्चे को मार दिया, खुद भी मर गई है, पता नहीं क्या किया, अल्लाह करे खुद भी मर गई हो। जब बच्चे को मारा है, कत्ल किया, तो खुद भी ऐसे लोग मर जाए तो अच्छा होता है। तो लोग कह रहे हैं हुकूमत को देखो महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रही, लोग मर रहे हैं। मैंने कहा हुकूमत को बुरा भला कहने का ये मौके नहीं है। हुकूमत गलत कर रही है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रही वगैरह वगैरह, लेकिन कोई खुदकुशी करता है ना, उस मौके पे हुकूमत को बुरा भला मत कहो, उस मौके पे नहीं कहो। ये मौका उस खुदकुशी करने वाले को बुरा भला कहने का है। तुमसे 2 टाइम की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, जरा सी टेंशन आ, देखो शहरों में कोई भूख से मरता नहीं है। मैंने देखा है कितनी भी भूख हो ना, आप भीख मांगो, लोग रोटी खिला ही देते हैं। होटल में जाओ,
10 आदमियों से मांगो कि एक तो खिला ही देगा, इतना जल्दी लोग भूख से मरने नहीं देते। सारी हवस है, हवस, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जब नहीं मिलता तो फिर किसमें आते हैं? टेंशन में। हमारे यहाँ के वाकयात हैं, लोग, मैं जब नया नया इमामत के लिए आया, बंदे मेरे पास आए, मुफ्ती साहब घर में ये मसाइल, मेरे पास लोग भेज देते हैं एतमाद करके, बहुत सारे लोग ज़कात मुझे दे देते हैं अपनी, कि आपको कोई मुस्तहिक मिले तो दे देना, सदका खैरात वगैरह दे देते हैं। तो मेरे पास अमाउंट पड़ी हुई थी, मुफ्ती साहब मैं यूं टेंशन में, यूं परेशान, मुझे लगा बेचारा बड़ी टेंशन में है, मैंने उसके साथ कुछ मदद कर ली। फिर दोबारा आया थोड़े दिन में, यार ये टेंशन, मैंने कहा यार आपको उस वक्त तो और टाइप की टेंशन थी, अभी क्या टेंशन है? कह रहे हैं बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूं। मैंने कहा तो निकाल लो बच्चों को स्कूल से। मुफ्ती साहब क्या बात कर रहे हो, बच्चों को पढ़ाओ नहीं? मैंने कहा नहीं पढ़ाओ। मैंने कहा भीख मांग मांग के बच्चों को पढ़ाना, उनको भी भिखारी बनाना, इससे बेहतर है सर उठा के जिए और कुदाल चलाए टमाटर बेचे। अल्लाह को वो टमाटर बेचने वाला जो हाथ नहीं फैलाता, खुदा की कसम वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए उस इंजीनियर से और उस प्रोफेसर से करोड़ा गुना ज्यादा कामयाब है, जो ज़कातें लोगों से ले लेके पीएचडी स्कॉलर बन जाए, उससे अल्लाह को ज्यादा महबूब है। हमने कामयाबी और नाकामी यूनाइटेड नेशन से नहीं पूछना, सही है ना, या मगरिबी अहले मगरिब से या लिबरल लोगों से नहीं पूछना कि कामयाब क्या है नाकाम क्या है। हमने अल्लाह से पूछना है। अल्लाह की नजर में अफीफ पाकदामन जो लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाता, जाहिल का जाहिल है, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है अल्लाह की नजर में, क्योंकि इसके पास एक नॉलेज है कि हाथ फैलाना क्या है, बुरी बात है, ये इल्म इसके पास है। और जिसने भीख जमा कर करके पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन गया, उसके पास सारी नॉलेज है, लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो ये कि लोगों के सामने हाथ फैलाने वाला अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये वाली नॉलेज उसके पास नहीं है। तो इंसान बनने के लिए इंसानियत वाली नॉलेज ज्यादा जरूरी है बनिस्बत टेक्नोलॉजी की नॉलेज से। अबे क्या हो गया, देखो एक और मिसाल देता हूं, तुम लोग की समझ में मिसालों के बगैर बात आती नहीं है। मिसाल की मिसाल मसालों की तरह होती है, जितना डालोगे ना बयान में, तो जैसे मसाले डालने से खाने का मजा दोबाला होता है, हजम भी होता है। मैं जो बयान में मसाले डालता हूं ना, वो ऑर्गेनिक मसाले होते हैं, खूब समझ लो। वो इंपोर्टेड मसाले नहीं होते कि फला अंग्रेज की किताब से पढ़ लिया तो फला की किताब से, वो हमारी मिसालें होती है, वो ऑर्गेनिक देसी मसाले हैं, उससे आपका पेट खराब नहीं होगा, ठीक है। तो मिसाल ही भूल गया इस चक्कर में, मैं क्या दे रहा था, मैं बात क्या कर रहा था? अबे तुम भी पागल हो, हैं हाथ फैलाने पे मिसाल दे। हाँ, मैं एक मिसाल दे रहा था। देखो, एक आदमी बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसके पास सारी दुनिया की सारी नॉलेज है, घर में बूढ़े अब्बा हैं, उसके पास ये इल्म नहीं है कि बाप के साथ बदतमीजी कितनी गैर अखलाकी हरकत है, बाप को बेयारो मददगार छोड़ देना कितना गैर अखलाकी है, बाप पे हाथ उठाना कितना बुरा अमल है। ये भी तो एक इल्म है ना, उसके पास ये इल्म नहीं है। अब वो लोगों का इलाज भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन बाप को कभी थप्पड़ मारता है, कभी घूंसे मारता है, कि ये पड़ा रहता है, खांसता रहता है। ये नॉलेज उसके, ये भी एक इल्म है, ये भी एक नॉलेज है कि भाई ये मेरा बाप है तो मुझे इसका क्या करना है, एहतराम करना। एक दूसरा वो शख्स है जिसके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, गरीब आदमी है, नॉलेज ना होने की वजह, लेकिन उसके पास ये नॉलेज है कि घर में बूढ़ा बाप हो या बूढ़ी माँ हो तो इल्म ये है कि उसका एहतराम करना पड़ेगा। ये अखलाकियात का इल्म, सोशल साइंस का इल्म उसके पास मौजूद है। समझते हो कि नहीं समझते? तो बताओ खुदा की नजर में कौन ज्यादा कामयाब है, ये पहला वाला या दूसरा वाला? तो अल्लाह के यहाँ क्राइटेरिया अच्छे बुरे का वो नहीं है जो गोरे के यहाँ या लिबरल लोगों के यहाँ है। तो अल्लाह की नजर में अच्छा बनने, मैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी से, तालीम से रोक नहीं रहा, हम तो तरगीब देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पहले क्या है, पहले अच्छा इंसान है, बाकी चीजें उसके बाद हैं। और ये जब तक खोपड़ी शरीफ में बात आएगी नहीं, जब तक दुनिया को मुसाफिर खाना समझोगे नहीं, क्योंकि जब सारे मजे यही लेने हैं, फिर इंसान इंसानियत पे कंप्रोमाइज करता है। फिर वो कहते हैं एजुकेशन चाहिए, पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, ओहदा चाहिए, शोहरत चाहिए, इंसानियत बेशक तबाह हो जाए, कुछ नहीं होता इससे। क्योंकि जब पैसा आता है ना तो लोग उसी को अच्छा इंसान भी समझना शुरू कर देते हैं, इज्जत भी मिल जाती है आजकल। तो अच्छा इज्जत के लिए अच्छा इंसान बनने की भी जरूरत नहीं है। देखो, एक आदमी ने कभी रिश्वत नहीं ली, नेक रहा, जिसकी वजह से बेचारा तरक्की नहीं कर पाया, पैसे नहीं थे तो पढ़ नहीं पाया, उसने कहा मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा और टमाटर बेच रहा है, इज्जत होगी उसकी? नहीं होगी। लोग हैं टमाटर वाला है। लेकिन एक आदमी ने भीख मांग मांग के ज़कातें इधर से ले ली, उधर से, और वजह उसके सामने कपड़े फाड़ के बैठ गया, ट्रक के नीचे आके लेट गया कि मुझे पैसा चाहिए। वो रो रहे होते हैं लोग, मैं भूख से मर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, और जमा कर करके भिखारी बन कर करके बिल आखिर नोट छाप छाप के बिजनेस शुरू किया, करोड़पति बन गया। चाहे भिखारी से बनाओ, किस तरह भी बनाओ, इज्जत इसकी जब घूमेगा ना गाड़ियों में तो लोग सलूट करेंगे, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आप? लोग थोड़ी देखते हैं हलाल का पैसा है, हराम का पैसा है, जो भी है। ये जो हम लोग हुक्मरानों को बुरा भला कहते हैं ना, भाई हराम का पैसा कमाया हुआ है, ये इसलिए बुरा भला कह रहे हैं, आपके सामने है नहीं। जब आपके सामने आएंगे ना, आप बोलेंगे सर मेरी तो आज चमत्कार हो गई, आप मेरे घर तशरीफ ले आए। पागल हो रहा हूं,
حالانکہ تھوڑی دیر پہلے آپ ہو سکتا ہے اس کو گالیاں دے رہے ہو، لیکن آپ اتنے خوش ہو گئے نا، یہ میرے گھر میں نام نہیں لینا چاہ رہا، اچھا نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے، منہ سے کئی دفعہ نام نکلتے واپس کرتا ہوں، تو میں اس لیے نام نہیں لیتا، بعض دفعہ میں کسی کا نام لے کے برائی کر رہا ہوتا ہوں، تھوڑے دن میں اس سے ملاقات ہو جاتی ہے میری، پھر میں شرمندہ ہو رہا ہوتا ہوں، کہے گا آپ وہی ہیں نا جو میرے بارے میں کہہ رہے تھے، میں فون کہہ رہا تھا کلپ ہٹا یہاں سے، یہ جو ہے نا فوراً یہ والا کلپ ہٹا، تو پھر نصیحت نہیں کر سکتا نا آدمی اس کو، اگلا بولے گا تو نے میرا نام لے کے بدنام کر دیا، تو اب کیا ہمیں نصیحت کرو گے، کیا بات کرو گے ہمارے ساتھ؟ تو آدمی جب مشہور ہو جاتا ہے تو پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں، فلا صدق ولا صلی، دنیا کو اس نے ہاں میں بتا رہا تھا، ابو طلحہ انصاری آئے، نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں محبوب جی صدقہ کرو، یہ سارا باغ میں نے کیا کیا، صدقہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا بخن بخن واہ واہ ذاک مال رابح، تو بڑا قیمتی مال ہے، پوری پراپرٹی اٹھا کے لے آئے۔ اور ہمیشہ ہمارے نبی نے ہر صحابی سے سارا مال قبول بھی نہیں کیا ہے، کیسا نہ ہو کہ آپ پہ ایسے حالات آ جائیں، بہت کم لوگوں سے آپ اس طرح کا مال لے لیا کرتے تھے، جن کے بارے میں یقین ہوتا تھا کل ان پہ اگر حالات آ گئے تو یہ اللہ سے شکایت نہیں کریں گے، ان حالات میں یہ خوش رہیں گے۔ تو ان صحابی نے کیا کیا، یہ ایمان کی کتنی بڑی علامت ہے بھائی، ہمارے نبی کو اصحاب کیسے ملے تھے، اور ہمارے نبی کا ظرف کتنا بڑا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ مجھے سونے کا مٹکا ملا ہے، خزانہ ملا ہے سونے سے، پتہ نہیں کہیں دفن خزانہ تھا، اچھا، اور اس میں اتنے خزانے وزانے نا، کیا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو میں نے اس کو شرعی حکم بتا دیا۔ اچھا، اس وقت میرے پاس بھی ایک مد تھی نا جہاں غربا مساکین تھے جن کو میں نے خرچ کرنا تھا، تو اس میں شریعت کا حکم ہے کہ کچھ فیصد صدقہ کرنا پڑتا ہے، ایسا کوئی اس میں یہ کہ دارالحرب سے ملا ہے، دارالاسلام سے ملا ہے، یہ پوری ڈیٹیل ہے، میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ مٹکے وٹکے نکلنے شروع ہو جائیں آپ لوگ کے یہاں، تو لیکن نکلیں گے نہیں، یہ ذہن میں رکھ۔ میں نے اس کو پہلی تو میں نے نصیحت کی، میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو نے مجھے تو بتا دیا، کسی کو بتانا نہیں، جب تک کسی کوئی صحیح اعتماد نہ ہونا کسی پہ بتانا نہیں، ورنہ مٹکا تو بچے گا، تو زندہ نہیں بچے گا، کسی کو نہیں بتانا، وہ آئے گا وہ سارا فی سبیل اللہ کہہ کے لے جائے گا سارا۔ تو مجھے خیال ہوا کہ یار جیسے ہوتا ہے نا چند فیصد صدقہ کرنا پڑتا ہے، تو میں نے پھر میرے پاس بہت سارے غریب مسکین تھے، لیکن میں نے نہیں اس کو بولا، میں نے کہا اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ مفتی صاحب کے دل میں کیا آ گئی ہے، لالچ آ گیا، لیکن میرے دل میں لالچ نہیں تھی، مجھے یہ تھا کہ کیونکہ ان لوگوں کو صحیح مد نہیں پتا ہوتی، ادھر ادھر اڑا نہ دیں، تو پیسے دیکھتے ہی انسان کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی۔ تو اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، جب وہ صحابی باغ لے کر آئے تو آپ نے کیا فرمایا، یہ گورے کے کلچر میں اور اسلام کے کلچر میں فرق بتا رہا ہوں، جو میں کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں آپ کی کھوپڑی میں یہ سافٹ ویئر کیا ہو جائیں انسٹال، کے کافر کا راستہ الگ ہے، ہمارا لبرل طبقہ، ہماری حکومت، ہمارے اسکول، ہمارے کالج اس ٹریک پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں، جبکہ اسلام کا ٹریک 180 ڈگری پر ہے۔ ہمارے نبی کہہ سکتے تھے گورنمنٹ کو دے دو، کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ ہمارے نبی کی ایک ریاست تھی کہ نہیں تھی؟ مدینہ میں آپ بادشاہ تھے، آپ امیر تھے، آپ خلیفہ تھے، اللہ کے خلیفہ، آپ کہہ سکتے بیت المال میں جمع کرا دو، کیا خیال ہے وقت پہ کام آئے گا؟ نا نا نا، آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو۔ گورا کہے گا بولو نا، یورپ کی گورنمنٹ کہے گی اپنے چچا زاد بھائی کو دے دو، امریکہ کا صدر کہے گا، روس کا صدر کہے گا اپنے چچا زاد بھائی کو دے دے، ان کے ہاں یہی کہ سب کچھ کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا۔ اسلام کہتا ہے نہیں، اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا۔ ہمارے نبی کو بتاتے ہیں ان کے چچا زاد بھائی بہت محتاج ہیں، اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو۔ اب مجھے آپ بتاؤ، گورنمنٹ کو دے کے بھی عوام کو فائدہ ہوتا ہے، خدا کی قسم غریب چچا زاد بھائی ہے، اس کو دے کے جو فائدہ ہوگا نا وہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ چچا زاد بھائی کا دل باغ باغ ہو گیا ہوگا کہ نہیں ہو گیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا وہ چچا زاد بھائی ابو طلحہ انصاری کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے؟ وہ جان پہ کھیل کے ان کو بچائیں گے۔ گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی ہے۔ جب اتنا بڑا دل انہوں نے ابو طلحہ انصاری نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو پورا باغ دیا ہوگا، تو ان چچا زاد بھائیوں نے فری میں جب لیا ہوگا کہ یار ہماری غربت پہ اس نے اتنا خیال کیا ہمارا، تو آئندہ دیکھو ترغیب دینے سے پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، جب تک خرچ کرتا ہوا دیکھو گے نہیں جذبہ نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے نا، ایسے اللہ کی راہ میں اڑاتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے ہمارا بھی دل بڑا ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، خرچ کریں۔ تو ابو طلحہ انصاری کے بھائیوں نے کیا تصور کر سکتے ان کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے؟ وہ ان کے موت کے بعد ان کی بیوہ کا بھی خیال کریں گے، ان کے بچوں کا بھی خیال کریں گے۔ تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ انسانوں کا آپس میں ریلیشن مضبوط ہو۔ کفر چاہتا ہے انسانوں کا آپس میں ریلیشن جانوروں گدھے گھوڑوں جیسا ہو۔ انسانوں کا گورنمنٹ سے ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے، جبکہ گورنمنٹ کوئی چیز
کوئی دل تھوڑی ہے گورنمنٹ کے پاس, کوئی احساسات ہوتے ہیں حکومت کے پاس, کوئی جذبات ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ سے آپ کے تعلقات اچھے ہو کے گورنمنٹ بڑھاپے میں کیا آپ سے باتیں کرے گی, آپ کو لطیفے سنائے گی, آپ کو گلے لگائے گی, آپ کے دکھ درد میں شریک ہوگی, کچھ بھی نہیں سوائے پیسہ دے دے گی آپ کو ریٹائرمنٹ پہ. جبکہ انسان کو جذبات کی ضرورت ہے, محبت والے جذبات. آپ کے لیے کسی کا دل دھڑکتا ہو, آپ کے لیے کوئی روتا ہو, یہ انسان کی نیچر ہے. انسان کو اللہ نے تنہا پیدا نہیں کیا, انسان کو انسانوں میں پیدا کیا ہے. انسان کو ریلیشن نہیں ملے گا تو وہی حال ہوگا جو اس مالدار کا ہوا, کروڑوں روپے خرچ کیے اور ہمارے استاذ کے پاس آ کے رو رہا ہے کہ میں کھانستا ہوں تو نہ میری بیوی پانی کا پوچھتی ہے نہ میری اولاد پانی کا پوچھتی ہے, مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ میں نے جمعے میں ایک واقعہ سنایا تھا نا, ادھورا رہ گیا تھا وہ واقعہ. وہ ہمارے ایک دوست تھے, جامعۃ الرشید میں ڈرائیور ہیں وہ پہلے ڈیفنس میں کہیں چوکیدار تھے. میں نے اسے پوچھا یار آپ نے ڈیفنس میں چوکیداری کیوں چھوڑ دی؟ کہہ رہے ہیں یار ایسا واقعہ, وہ ہمارا کھوپڑی گھوم, پٹھان تھا وہ, کہہ رہا ہمارا کھوپڑی گھوم گیا. میں نے کہا کیسے گھوم گیا بھائی تمہارا کھوپڑی؟ کہہ رہے ہیں یار میں جس گھر میں چوکیداری کرتا ہوں سیٹ کا انتقال ہو گیا, اس گھر کے سیٹ کا انتقال ہو گیا تو ایمبولینس آئی جنازہ رات کو 2-2:30 بجے. تو ایمبولینس والا نے بولا بھائی ان کے بیٹے کو بولو کہ وہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے. کہہ رہے انتقال ہاسپٹل میں ہوا, بچہ گیا نہیں وہاں. تو میت جب گھر آئی ہے تو کہہ رہے میں گیا, میں نے اس کے بیٹے کو جگایا, بھائی تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کہہ رہے ہمارے گاؤں میں تو رونا دھونا کئی مہینے تک تعزیت چلتی ہے, رو رہے ہوتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کہہ رہے میں گیا, میں نے اس کو اٹھایا, اٹھا ہی نہیں. بولا عیدی سینٹر والوں کو بولو غسل کفن دے کے دفن کرتے ہیں. اور یہ واقعہ بھی 20-25 سال پرانا ہے. اب تو اور ترقی کر لی ہے بھائی ڈیفنس نے. اب تو یہ چھچور پنا بھی نہیں ہے کہ عیدی وہ سارے ڈیفنس والے ایسے نہیں ہیں بھائی, بہت سے اچھے بھی ہیں جو بیان سنتے ہیں ہمارا, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے کہ یہ حال, کہہ رہے میں نے کہا یار یہ انسان کا بچہ ہے, یہ تو اس سے تو گدھا اچھا ہوتا ہے. باپ کی میت آئی ہوئی ہے باہر, ہم تو کئی مہینے, میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا 6 مہینے میں ٹینشن سے نکلا نہیں تھا. حالانکہ ہم تو اتنا سوچ کے بھائی موت تو برا کے, پھر بھی 6 مہینے تک مجھے ٹینشن مسلسل رہی ہے. تو وہ کہہ رہے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے بھائی. کہہ رہے میں نے کہا اس جگہ کو چھوڑو, ان لوگوں کو چھوڑو, ورنہ ہم بھی, ہمارا دل بھی پتھر ہو جائے گا. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد اور قوم سمود کے آثار سے گزرتے تھے نا, تو منہ چھپا لیا کرتے تھے, کپڑا ڈھانپ لیا کرتے تھے تاکہ اس عذاب کو نہ دیکھیں. بخاری کی حدیث ہے, قوم سمود کے آثار سے آپ گزرے, صحابہ نے وہاں پانی, کنووں سے پانی نکال کے آٹا گوندا, آپ نے سارا آٹا پھینکنے کا حکم دیا کہ ان کنووں سے پانی بھی نہ پیو. حالانکہ کنووں میں تو کوئی خرابی نہیں تھی نا, لیکن علماء نے حکمت لکھی ہے کہ اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اس سے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ پتا ہے بھائی قوم سمود تھی, اللہ کا قہر آیا اس کے اوپر, انہی کنووں سے آپ پی بھی رہے ہو اور آٹا بھی گوند رہے ہو, تو اللہ کے عذاب کی کا جو خوف ہے نا وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. تو یہ حکمت تھی اس میں. تو ایسے علاقوں میں, علاقہ تو ڈیفنس میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں, اچھے بھی برے لوگ بھی, لیکن ایسی جگہ چوکیداری کرنا جہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہوں. تو ہمارا پٹھان دوست ہے, اس نے بولا یار ہم بھی, ہمارے بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے, تھوڑے دن میں ہمیں بھی اپنے ابا کیا لگیں گے بھائی, بوجھ لگیں گے. ہم کہیں گے یار اس کے تو جنازہ باہر پڑا ہوا ہے, ابا نہیں آ رہا, اور ہم سارا دن ابا کے پاؤں دباتے رہتے ہیں. تو یا تو وہ بے وقوف ہیں یا ہم بے وقوف ہیں. تھوڑے دن میں ہو جاتا ہے انسان. اس نے کہا, ہم نے کہا چوکیداری چھوڑو, کسی مدرسے میں ڈرائیونگ کرو پھر جا کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو کیا حکم دیا؟ یہ باغ ججزات بھائیوں, بعض دفعہ آپ نے بیت المال میں بھی جمع کروایا, وہ بھی ضرورت ہے, گورنمنٹ کو بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن صحابہ بیت المال میں بھی دیتے تھے, ان کو پتا تھا خرچ کس پہ ہوگا. ہمارے یہاں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, زکاتیں بہت دیتے ہیں. ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں کو حکومتوں پہ اعتماد نہیں ہے, اور خدا کی قسم یہ ہمارا مذہب ہے جس کی وجہ سے ملک چل رہا ہے. ورنہ غریب کو یہاں کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہ ہو, کیونکہ گورنمنٹ کے نہ تو اولڈ ہاؤس ہے نہ غریبوں اور معذوروں کی مدد ہے. یہ تو مذہبی جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم معذوروں کو گھروں میں پال لیتے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھروں میں رکھ لیتے ہیں ہم لوگ. تو خیر میں قرآن کی آیت جلدی سے کمپلیٹ کروں. قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی